Hi everyone, good afternoon. Thank you so much for joining. We'll just give 2 minutes before we start, and while you wait, you can hear the Bachpan Manao song. We'll start in exactly 2 minutes as soon as the song is over. बचपन मना रे यारा बचपन मना जादू है जीने दे जरा बचपन मना रे यारा बचपन मना गिरने दे बढ़ने दे उनको पास आए तो गले भी लगा बचपन मना रे यारा बचपन मना ये दुनिया नया आसमां बच्चों को बचपन से ही सिखा खेलते खेलते ऐसे तो जीवन सजा बहुत अच्छा गाना बनाया ना। ये बचपन है त्योहार हर दिन का As we wait, if we can tell each other where we're from, just say hello, that will be lovely. I'm Hita, I'm from Bangalore. Lovely to meet all of you today. बचपन मना रे यारा बचपन मना रे यारा बचपन मना अरे अब तो मना ले यारा All right, let's get started. Good afternoon, everyone. Thank you so much for joining us on this very special masterclass in collaboration with Swatantra Talim. Um, we're so thrilled to have you all here today, and the session today is about making your own play. So, whether you're in education, community outreach, or child development, we're just very happy that you'll have this opportunity to take all of these insights and use them in your own work. I'd briefly like to share why this topic is so important to us at Bachpan Manao. As you know, the mission is to raise awareness and spotlight the critical importance of the first 8 years of a child's life. And today we're going to explore how so much learning, really, so much learning happens through play and everything around us that can be used. How the environment we create plays a pivotal role in ensuring that every child has the opportunity to thrive. It's my great pleasure to introduce folks from Swatantra Talim who are bringing us this masterclass today. Swatantra Talim gives children and youth a space where they can truly practice rather than just read about the principles of free speech, free association, and the freedom to choose their own learning paths. Children are motivated to learn, but with choice over how and what they learn. With children and the community around them, they try to weave elements of stories, participation, expression, and making and tinkering by development and change in stages through creating, inspiring, empowering, and disseminating. This Bachpan Now masterclass is being led by the co-founder of Swatantra Talim, Rahul Agarwal. Rahul is a design educator who likes to incorporate the principles of constructionism in his practice. He has co-founded Swatantra Talim, a not-for-profit organization working in the space of alternative education through contextual and constructionist pedagogy. Um, he has an incredible background, and I'm going to hand over to Rahul now to take us through this masterclass. I'm very excited to see what he has to hear. Thank you, Hita. Thank you so much. Uh, uh, thank you for the introduction, and I am really excited. बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर. So many people around. आई एम फ्रॉम लखनऊ. मैं लखनऊ में हूँ इस वक्त, और स्वतंत्र तालीम, जैसे कि हिता ने बताया, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. पिछले 12 सालों से हम लोग लखनऊ के गांव में और गवर्नमेंट स्कूल्स में काम कर रहे हैं. एंड द आइडिया टू स्टार्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कि जैसे हम देखते हैं कि मेन स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा प्योर एकेडमिक्स को हम देखते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, है ना, इस तरीके के सब्जेक्ट को देखते हैं. कैसे हम प्ले मेकिंग स्टोरीज के माध्यम से बच्चों को सिखा सके. और उसके कुछ आज मैं एग्जाम्पल्स और कुछ थोड़े थोड़े आई विल रन थ्रू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्टोरीज ऑफ आवर स्टूडेंट्स, है ना, probably, है ना, in today's session. So let's start this session.
I'll share the presentation to you, and we can after that talk about it. Maybe if you have some questions around it, and you can ask it. Can you all see the presentation? Yes, perfectly. Okay, thank you. So let's play. So I would think, why is it going? So I would request all of you to do a small activity first. Take a small or a full size A4 paper. जबके पास A4 पेपर होगा, है ना, वो ले लें फटाफट फटाफट जाके, और उस पेपर से यू हैव टू कट अराउंड 10 to 12 स्ट्राइप्स, जितना भी आप ऐसी एक पट्टियां काट लें, है ना, सिंपल हाथ से, स्केल की जरूरत नहीं है ना, ऐसे पट्टियां काट लें, है ना, ऐसा कुछ इसको, तो इस पेपर से इस पट्टियों को काट लें। उसके बाद जब आपके पास पट्टियां बन जाएं, when you have made these strips of paper, you have to take 2 strips, है ना, you have to take 2 strips and you have to join them in such a way that it doesn't fall, these 2 strips, कोई सपोर्ट की जरूरत ना देनी पड़े, और आपको इसको करते वक्त कोई भी मटेरियल यूज नहीं करना, आपकी फिंगर्स होंगी और अब पेपर होगा, बस ये स्ट्राइप्स, ना फेविकॉल, ना, है ना, सलाइवा भी यूज नहीं करना है। ओके, सो यू डोंट, है ना, you don't have to use your saliva, you just have to use your fingers and the piece of paper. And now the task is, in how many different ways can you attach these 2 strips of paper? कितने अलग अलग तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, वरुण ने कुछ करा है, हाँ, तो एक ये तरीका हो गया। तो वरुण, और कोई तरीके, और कोई, है ना, if people want to show, come on video, show, yeah, lovely, lovely था। तो ऐसे और तरीके कैसे हम इन 2 पट्टियों को और अलग अलग तरीके से जोड़ सकते हैं। This is another way. Yeah, yeah. So if you have 10 strips, तो maybe at least 5 more. और कोई कर रहा है? Can we see others? हाँ, मुस्कान जी दिख रही है मेरे को करती हुई, अमन, गौतम, गुड गुड गुड, और लोग भी ट्राई करें, है ना, और मजा आएगा आपको, है ना। वाह, बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो एक पेपर लेना है और कुछ नहीं करना। कोई दिखा सकता है? अमन, आप दिखा सकते हो आपने क्या बनाया अब तक, कितने जोड़े? ऑडियो ऑन करके बोल भी सकते हैं, हाँ हाँ हाँ। हाँ, मैंने अभी एक जोड़ना शुरू किया है। ओ जिसे लवली, कट, थोड़ा सा कट किया है और इसे अंदर डालेंगे। तो बहुत मैंने बढ़िया, कोई कैंची का इस्तेमाल नहीं किया कभी। लवली। हाँ, कैंची का इस्तेमाल नहीं करना है। और मैं देख रहा था, मुस्कान, आप दिखाना चाहोगे? हाँ, आपने किया ना राहुल? हाँ, राहुल धमेचा, हाँ, वेरी गुड। कुछ बोलना चाहेंगे राहुल? आप ऑडियो ऑन कर सकते हो, ऑडियो ऑन कर सकते हो आप अपना। मैंने ये फोल्ड करके एक एक स्ट्रिप को दूसरे में फोल्ड करके और ये पंछी जैसा कुछ बनाया है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मैंने मतलब जोड़ा है एक दूसरे अब को। दिखाइए ना। अरे दिख रहा है वाह, क्या? बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। और किसी ने, अमीशा शायद ट्राई कर रही हैं काफी I अच्छे से। saw even Divya showing something. She made like an aeroplane. I'm damn curious to know how she did it with 2 strips of paper. दिव्या कुछ कहाँ है, मुझे नहीं दिख रही दिव्या। रॉकेट।
just they play, right? Rocket. Wow. हम्म, चलो गुड, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मजा आया आप लोगों को? I've beaten my own expectation. I thought only 12. So this is an activity which is actually taken me by surprise. मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल में when we did it, बच्चों के पास 15-16 अलग अलग तरीके से बच्चों ने किया है, and these are done by grade 2-3 students. तो हमें लगता था यार हमारे पास तो 5 के बाद आइडियाज ही नहीं है, ये बच्चे तो 15-16 अलग अलग तरीके से कर ले रहे हैं। तो दिस रिफ्लेक्ट्स कि हम लोग कितना ज्यादा कंडीशनड हो गए हैं, हमारा ब्रेन है ना, आफ्टर 5 मोर पैटर्न फिर वो लगता है अरे यार ये तो हो गया। सो प्ले इज वेरी पावरफुल, एंड प्ले का जो मुझे लगता है कि कैन नॉट बी गिवन एन डेफिनेशन कि प्ले ये है। जैसे अभी हम कागज के साथ भी खेल ही रहे थे, है ना, वी वर प्लेइंग विद द पेपर। इज नथिंग लाइक कि व्हेन यू गो ऑन द, है ना, क्रिकेट field, then only you play. It doesn't mean that way, you know. So today presentation, you'll see a lot of different kind of examples of play. And so what does playful learning look like? I think one of the जो एक चैलेंज रहता है कि ये दिखता कैसे है ना, ये हाउ डज इट लुक लाइक इन प्रैक्टिस, है ना, हाउ डज इट लुक लाइक इन द क्लासरूम्स, हाउ डज इट लुक लाइक इन द कम्युनिटी सेंटर्स, because I'm also an educator, so I want to see कि ये दिखता कैसे है ना, and this is one thing that, so one of the facets of play is to explore the unknown, and because you're playing something and you don't know what will come through, है ना, चाहे वो पजल हो, तो ये राइट साइड में जो एक बच्ची है वो टाइमग्राम पजल से एक एरो बना रही है, एंड शी डजंट नो हाउ टू फिगर इट आउट, शी इज फिगरिंग इट आउट, शी इज यूज अ सिंपल मटेरियल ऑफ कार्डबोर्ड, है ना, एंड just looking at the pattern, trying to, है ना, वही वाला पैटर्न को बनाने की कोशिश कर रही है, and it's very unknown. Similarly, on the left hand side, if you see, these children are crossing a poisonous river, और जो बच्चे के हाथ में है वो एक शिप है जो डूब जाएगा अगर उसके हाथ से छूट गया तो। सो इट इज अबाउट, दे डोंट नो कि कैसे पार करना है, कैसे वो आगे जाएगा। सो दिस प्ले एक्चुअली हेल्पिंग टू बी कंफर्टेबल विद द अननोन, कि जो नहीं पता है उससे हम कैसे कंफर्टेबल हो थ्रू दिस। सेकेंड इज लीड देयर ओन वे। आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव नोटिस इन प्ले कि चिल्ड्रन फील वेरी एम्पावर्ड, है ना, चिल्ड्रन फील कि या नाउ दे आर द मास्टर ऑफ दिस क्लास, rather than Rahul Agarwal, the master class taker, they are the master of the class who are driving their, है ना, success or failures, whatever. So on the left hand side, if you see, this girl is putting up different kinds of shapes, faces, और उसने उसको cuts बनाए हैं अलग अलग जगह पे, और उसको वो लगा रही है इंटरेस्टिंग वे में, और कोई उसको पैटर्न नहीं है उसके दिमाग में। शी इज डूइंग इट while and thinking while she is making on the way. On the right hand side, you see these children have put in, वो लेके आए हैं प्लास्टिक की बॉटल्स, उसमें पानी भर दिया है और नीचे कुछ पंखा लगा दिया है, और वो प्रेशर से, मुझे याद है, वो प्रेशर से वो विंड एनर्जी वाला, डायनेमो वाला उन्होंने मोशन बनाया है। तो आपने देखा होगा वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ऊपर से डैम से पानी गिरता है, और वो उन्होंने खेल गांव में, ये मालसराय गांव में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। तो ये बच्चे ऐसे दिमाग लगा रहे हैं बिल्कुल, है ना, उसमें। तो and then finding joy in their learning, I think these are the three things that I have seen play में, which is leading their own way, explore the unknown and finding joy. Look at this girl in the cap, है ना, मतलब कि इस लड़की की हंसी के लिए, मतलब she is just watching a puppet show, that's it, and she is enjoying, and while moving puppets or playing with the toys, और राइट हैंड साइड पे दिस गर्ल इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द पिक्चर, है ना, वो पैर अगर लेफ्ट लगाना है या राइट लगाना है। तो चिल्ड्रन आर वेरी, दे आर एक्सेप्टिंग द चैलेंज सो ग्रेसफुली, है ना। वो एक जो है, नहीं तो आप मैथ्स का क्वेश्चन दे दो बच्चों को नींद आ जाती है ना, साइंस के फॉर्मूले पढ़ाओ तो बच्चे बेहोश हो जाते हैं, मगर इसमें देखो इतना मजा आ रहा है
और काफी जो स्ट्रिक्ट टीचर बोलेंगे सीख नहीं रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं है तुम्हारी क्लास, ये नहीं है, बट मेरे को लगता है कि सबसे केओटिक क्लास ही सबसे ज्यादा सीखती है ना। वो बातचीत करते हैं, दे टॉक अ लॉट एंड दे डिस्कस issues and all those stuff. So this is what I found very fascinating. So how does Swatantra Talim play? And we as a bunch of team members, about 16, 17, and a youth and a led team, how does we play? And one of the strong foundation of our work rests on freedom. So freedom for the child to discover, to make, to express through her or his methods, own methods. तो वो बच्चा अपना डिवाइस करता है अपनी स्ट्रैटेजीज को अपने तरीके से. And secondly, we challenge the memory based assessments. We say that is like कि रटा उगल दिया. How can we demonstrate our learnings, है ना. तो उसके भी मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा. We follow a very famous you can say educator, a very good philosopher, Samuel Pepperett, who was given the constructivist approach. Constructivist approach का मतलब है कि हम कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे नई तालीम फिलॉसफी है गांधी जी की, और जब हम कुछ बनाते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ मेंटल मॉडल्स बनते हैं जिससे हम सीखते हैं. सो दैट इज व्हाट दे हैव कॉल्ड. और हम लोग काफी चीजें कल्चर और आर्ट को भी जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज वन एरिया वी ट्राई टू डू इट. सो ये थोड़ा सा हमारे फिलोसफी के बारे में था. So we do puppet shows in government schools, in our learning centers. So our team basically devises these puppet shows, and puppetry also serve as a pedagogical tool. इसके माध्यम से हम बहुत सारी लाइफ स्किल्स के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में, इमोशंस के बारे में, है ना, आसपास के जो सोशोलॉजिकल इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में. तो ये पपेट शो का है कैसा हो हमारा शेर. और ये शेर बड़ा ही डिफरेंट टाइप का शेर है. दिस शेर वांट्स टू डू फ्रेंडशिप विद कैट्स, विद बटरफ्लाईज. और उसके जो दोस्त हैं वो उसको डांटते रहते हैं, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है. और ये शेर इस सोसाइटी के नॉर्म्स को नहीं मानता है. वो कहता है कि यार मुझे तितली के साथ दोस्ती करनी है, मुझे अगर करनी है तो मुझे करने की आजादी होनी चाहिए, मैं क्यों सिर्फ शेर से ही दोस्ती कर रहा हूँ. तो दिस इज हाउ वी ब्रिंग अप दी क्वेश्चंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, आइडेंटिटी, है ना, थ्रू आवर पपेट शोज. और उससे फिर बच्चे क्वेश्चंस करते हैं. और इन पपेट्स को बनाने में मजा बहुत आता है ना, बच्चों को भी हमको भी. सो देन वी प्ले लॉट ऑफ टॉयज, गेम्स एंड पजल्स विद द स्टूडेंट्स, जो कि लिंक्ड होते हैं पपेट शो से. और थोड़ा कोशिश ये करते हैं कि उसमें थोड़ा दिमाग लगे. दैट इज वन थिंग दैट आई एज एन एजुकेटर वांट चिल्ड्रन टू अप्लाई देयर माइंड. चाहे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, लॉजिकल हो थोड़े से, है ना, रिस्क टेकर भी हो, उनकी क्रिएटिविटी भी एनहांस हो. तो मैं बहुत सारी चीजें ऐसी करना चाहता हूँ जिसमें बच्चे दिमाग लगाएं. जैसे इस गेम में बच्चे बैलेंस कर रहे हैं गोटियों को, है ना. ये ग्रेड 2 ग्रेड 3 के बच्चे हैं, और एक बच्चा गोटी लगाता है, फिर उसको बैलेंस करना होता है, फिर एक गिराता है. तो इस तरीके के गेम्स होते हैं. And then we do a lot of these making adventures. Making adventures is basically where children, जो आसपास का मटेरियल है, डंडी है, कागज है, न्यूज़पेपर है, उसको यूज करके बच्चे क्या बना सकते हैं, है ना. सो दिस चिल्ड्रन आर मेकिंग बुनराकू पपेट. बुनराकू इज अ स्टाइल ऑफ जापानीज पपेट्री. और वो बच्चे यूज कर रहे हैं. और वो जब करते हैं, पपेट जब बनाते हैं, तो उनकी मोटर स्किल्स इंप्रूव होती हैं, एंड दे बिकम अ लर्नर, है ना. बेसिकली why we are doing it, because we want children to learn continuously. और वो सीखें कैसे बनाने में मटेरियल जोड़ते हैं, फिर मैकेनिज्म सोचते हैं, फिर वो कोलैबोरेशन करते हैं, आपस में दोस्ती करते हैं. तो ये सब चीजें करते हैं तो, है ना, आगे बढ़ते हैं. एंड देन मैंने जैसे बोला था कि वी ऑल्सो ट्राई टू मेक चिल्ड्रन थिंकिंग विजिबल. एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमें लगता है काम का, कि बच्चों की थिंकिंग को कैसे विजिबल कराई जाए, मतलब कि कैसे पता लगे. तो बच्चे साल के अंत में एक एग्जीबिशन लगाते हैं. दे पुट अप एन एग्जीबिशन कॉल्ड आशाएं, विच इज शोकेसिंग देयर ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट्स. जो भी उन्होंने बनाया है उसके पीछे उनका क्या लॉजिक था. वो पेरेंट्स आते हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स आते हैं, सरपंच आते हैं, बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं. चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड इन देयर ओन वे कि हमने ये सीखा, ऐसे किया. एंड दिस इज द पेडागोजी दैट वी यूज टू डू ऑल दिस. इज द फर्स्ट लेग ऑफ दिस स्टोरीज, जो कि पपेट शो में हम लेते हैं. फिर सेकंड इज द टॉयज, गेम्स एंड पजल्स.
third is the making center, and fourth is the exhibition. This cycle repeats, and every month on month, and we put up new shows, new games, and everything. So I'll show you. So why don't we create some puppets right now? है ना? You were thinking, अब आप सोचेंगे कि यार अभी कैसे puppet बना लेंगे, कैसे हो जाएगा? आप लोग तैयार हैं puppet बनाने के लिए? Let's do it. Yes. Yes. So मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आपको घबराहट नहीं करनी है कि अरे हमारे पास मटेरियल्स नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हम कैसे बनाएंगे ये वो. So I'll show you some examples, है ना, and you can choose whatever you want to. So one of the examples is like this. आप आइसक्रीम स्टिक यूज कर सकते हो, आप एक छोटी सी बॉल यूज कर सकते हो, आप आलू यूज कर सकते हो, है ना, आप उनसे भी पपेट बना सकते हो, या फिर यू कैन यूज अ स्मॉल पीस ऑफ, ये अमेजोन के जो गत्ते आते हैं उनके जो पीछे वाला होता है उससे आप कुछ पपेट बना सकते हो. आसपास अगर लीफ है, यू हैव अ लीफ अराउंड, है ना, जो भी आपके सराउंडिंग्स है, भाग के जाइए, फटाफट लेके आइए, है ना. एंड यू कैन मेक अ पपेट थ्रू योर स्लीपर्स, है ना, उसके नीचे की साइड पे. और अगर ये भी नहीं है तो बाथरूम स्लीपर हो, और वो भी नहीं है तो यू कैन यूज अ फोर्क एंड स्पून. बट द चैलेंज इज टू गिव अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम टू योर पपेट, है ना. जो सबसे इंटरेस्टिंग नेम देगा उसके लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे, है ना. तो आपके पास इसको करने के लिए 2-3 मिनट है ना. जस्ट लुक अराउंड अपनी टेबल के आसपास, आप जहाँ बैठे हैं, पैरों में क्या है, सॉक्स भी उतार सकते हैं अगर सॉक्स पहने हैं तो, और इफ यू हैव अ हैंकरचीफ तो वो भी ले सकते हैं, और उससे भी ट्राई कर सकते हैं कुछ पपेट्स बनाने का, है ना. उसकी अगर मैं आइडियाज दे रहा हूँ, रबर बैंड लगा सकते हैं तो उसका सिर बन सकता है ना. तो ये कर सकते हैं आप, है ना. जल्दी 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 जल्दी. हाँ बहुत बढ़िया अमन, फिर से जल्दी जल्दी जल्दी. गुड गुड गुड. अगर ज्यादा लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, बैंडविड्थ अलाउ करे तो कर सकते हैं, नहीं करती तो कोई बात नहीं, कर सकते अगर कर सकते हैं. ऊपर भी बनाते हैं, बन के बांध के और वो स्टेज पे कर और वीडियो पे दिखाइए कैसा लग रहा है आपका पपेट. हिता ने बना लिया है, आई कैन सी. हाँ, फोर्क से. हिता, आपके पपेट का नाम क्या है? मैं सोच रही हूँ, पर कुछ फ्लफी टाइप का बहुत ही खराब नाम आ रहा है दिमाग में. एक नाम सारे अच्छे होते हैं. और किसी का बन गया? ज्यादा लोग वीडियो ऑन करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा. या अरे पार्वती, हाँ पार्वती का हो गया मेरे ख्याल से. और कोई? देखिए जितना हम बनाएंगे उतना सीखेंगे भी, है ना. I will tell you more examples through this master class, but the more you make, the more you learn. Wow, Varun is ready with his puppet. वरुण दिखाइए. अरे वाह, Yeah. बॉटल को यूज किया. वाओ. Yeah. What's the name of the puppet? I've named him Botley. Oh, lovely. Look, you have to put this photograph on your Instagram page. सिंड्रेला जैसे अरे अमन, अमन दिखाओ, वीडियो ऑन करो, बोलो इसके बारे में. पपेट का नाम क्या है? ये हाँ. फिंगर पपेट है. ओके. ये हम लोग हाँ फिंगर पपेट बनाए हैं. तो ये नाम क्या है इसका? इसका नाम तो सोच रहे हैं अभी. अभी तो नाम बनाए ही बता है. दो यार, कुछ रख दो यार. नाम क्या हो गया, अभी रख दो. So Even this is Parvati my was sharing. puppet Sorry. with a handkerchief. अरे लवली, Made out of a handkerchief. लवली वृंदा जी, लवली लवली. आपने नाम रखा इसका?
हाँ पठान। पठान, ओह, शाहरुख खान इंस्पायर्ड। या मैंने एक बनाया है पेन पपेट, इसका नाम है रईस। रईस। लवली। दिव्या ने कुछ बनाया है। दिव्या, आप कुछ बताएंगे अपने पपेट के बारे में? Yeah, this is the mango, raw mango waste is there, the seed, mango seed waste. And this is the dry grapes. I had this one at kitchen, so I just made with the toothpicker this mango man. Lovely, beautiful, Divya, beautiful. It's much beautiful than I had. Very good, very good. हाँ, दत्तारेश, हाँ बताइए। वाह, स्पीक अबाउट योर पपेट। हाँ हाँ, संजीवनी दीदी, संजीवनी दीदी आपका ऑडियो ऑफ है। हाँ Yes. हाँ मेरा गिर रहा है। मेरा दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है ना मेरा? हाँ, दिख रहा है। हाँ, ये मेरा पपेट है। Okay. इसका नाम कोंडीबा है, कोंडीबा। ओके, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। बढ़िया है। आगे बढ़ें क्या? और कोई दिखाना चाहता है अपना? लता जी ने बनाया है। लता ने भी बनाया, दिखाओ। अरे ब्यूटीफुल, बॉटल में। खा गए आप तो यार। आप लोग तो बहुत क्रिएटिव लोग हो। वेरी नाइस, यू आर ऑल आर वेरी क्रिएटिव, एक्सट्रीमली गुड। So let's move forward. So you all have explored making puppets, and you know how to use materials around you. I can see Rahul making, Ajay making. Lovely, lovely, extremely powerful. And you know the power of puppets, na? It is very powerful for the child, है ना? Child तो बिल्कुल mesmerize हो जाते हैं when they see the puppets. So I'll show you some more examples. रामू काका Yeah. पपेट। रामू हाँ, काका, रामू क्योंकि काका। हाँ, जब भी हिंदी फिल्म में देखते हैं कोई चाय बना रहा होता तो उसका नाम हाँ रामू काका जरूर है। तो ये टी कप से मैंने बनाया है। हाँ, रामू रामू काका तो सबसे फेवरेट कैरेक्टर होता है। करेक्ट, 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 यू आर राइट, करेक्ट। ये इसका नाम क्या है? हाँ, तो ये जो पपेट्स होते हैं बड़े पावरफुल होते हैं। मतलब कि दीज आर, मतलब कि एकदम से बच्चों के, है ना, अटेंशन को ग्रैब। जैसे क्लास में शोर मच रहा होता है, जनरली यू ब्रिंग द पपेट। ओ वाओ, जैसे हमारे पास कुछ पपेट्स हैं क्या आसपास? जैसे ये हमने, है ना, मॉन्स्टर बनाए थे एक गेम में, है ना। सो ये और भी कुछ पपेट्स वहां से लेके आओ, कुछ पपेट्स, है ना। तो आई शो यू। ओ हाँ, ये वाला पपेट, है ना, ये लीफ पे है। और वो वाला, वो वो वाला ला दे, जिराफ। हाँ, जिराफ। सो चिल्ड्रन गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे सी दैट। बस लिया, 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 लिया। हाँ, so this is another puppet. ये क्या हो रहा है? So yeah, so this is a mask of a giraffe. Today, हाँ, हाँ कैमरे ब्लर किया हुआ है ना। हाँ, तू दिखा दे। हाँ, हम्म, इधर आपको अलीशा के थोड़े look at Alisha's screen. Hmm. Okay. So a lot of puppets have been made and lot of puppets have been created, and you can use a lot of these materials around you. There is no dearth of material, है ना? So I will show you some more examples of games. So what we have been doing in the last, I would say 10, 12 years is that we have used a lot of this contextual material around us, which is stones, twigs, leaves. Like look at this image only. And our children have made different shapes using stones and some twigs. तो बच्चे कुछ भी करते हैं और उसको पैटर्न्स बना लेते हैं, है ना। हमें जो कोशिश करनी है कि कैसे उस क्रिएटिविटी को नर्चर करने के लिए। So this is what some of the examples of board games and other games. Like if you look at this emotional card game, तो उसमें we have devised a game जिसमें there is a dice, you throw the dice,
उसमें जो शेप आ रही है इमोशंस ऑफ एंगर, जॉय, हैप्पीनेस या कुछ ऐसी, एंड दे हैव टू फाइंड आउट द सिमिलर कार्ड. Similarly, emotional balance games I have talked about. Tower of imagination. Now children have to make the highest tower, है ना, सबसे ऊंचा टावर बनाना है कार्डबोर्ड के पीसेस को ज्वाइन करके. फिर ये वाला बच्चे ये भी ऊंचे से ऊंचा टावर बना रहे हैं ना, नीचे वाली इमेज में. और ये बेसिकली एक विम्सिकल काइंड ऑफ ज्योमेट्रिक वंडर फॉर्म्स है, जिसको ज्वाइन करते रहो करते रहो करते रहो तो वो खुलता रहता खुलता रहता. So all these games we have made and children have played. So there is a difference I will show you afterwards, where children themselves have made games and played with it. But here we have as a team made the games and we have seen the impact. इसका impact इतना phenomenal है, मतलब जो क्लास में बैक बेंचर्स होते हैं वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं क्लास में, है ना. जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं वो मदद लेने के लिए पहुंच जाते हैं बैक बेंचर्स को, क्योंकि अब यार उनसे सॉल्व नहीं हो रहा है. देयर इज लॉट ऑफ कोलैबोरेशन विद इन द क्लास, है ना. तू मेरी मदद कर दे. अब आप जैसे वो बॉक्स क्वेस्ट वाली फोटोग्राफ में देखो, बच्चे लगे हैं साथ में, है ना. देयर आर सम 3-4 स्टूडेंट्स वर्किंग टुगेदर, है ना. व्हाइल इफ यू लुक एट द मेन स्ट्रीम एजुकेशन, मैथमेटिक्स का सॉल्व बच्चा अकेले सॉल्व कर रहा है, साइंस की पजल वो खुद कर रहा है. व्हाइल इन अ गेम you have lot of children playing together, so it brings lot of collaboration. Secondly, you look at this left hand side photograph where a child is doing a puppet show. So वो एक और powerful factor रहता है when children doing puppet show for other children. It brings another level of, है ना, attraction, है ना. उसकी आवाज, वॉइस मॉड्यूलेशन भी बच्चों की तरह होती है, तो फिर वो है. तो वो भी एक चीज आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि जब बच्चे खुद पपेट शोज करें या परफॉर्मेंसेस करें फॉर बच्चों के लिए. और फिर हमने थोड़ा सा ये भी कोशिश करा है कि कैसे इन गेम्स को या इस प्ले बेस्ड मेथड्स को ग्रेड वाइज कर सकें, क्योंकि जनरली एजुकेटर्स वांट कि यार ग्रेड 1 एंड 2 में मैं कौन से गेम्स खिला सकूं, है ना. सिमिलरली ग्रेड 3 में कौन सा गेम होगा, क्योंकि है ना देयर इज अ डेवलपमेंटल नीड्स हर एक बच्चे की डिफरेंट होती है ना. किसी की मोटर स्किल्स है. एंड ऑल्सो इट वर्क्स वेरी वेल विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो मैंने देखा है ना. जो बच्चे न्यूरोटिपिकल हैं, है ना, उन बच्चों के लिए बहुत है. कुछ बच्चे को क्लास में टीचर बोलती हैं बैठता ही नहीं है बैठता ही नहीं है, ये तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है. तो ये सब जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं उनके साथ ये वर्क्स आउट वेल. टीम थोड़ी लड़ रही है बहुत ज्यादा, है ना, नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, तो उनके साथ ग्रेड 4 ग्रेड 3 इस तरीके से वी हैव ट्राइड टू आल्सो क्लासिफाई द गेम्स. नाउ अनदर एस्पेक्ट ऑफ आवर make your own play or play based methods is to explore different types of materials. तो हमने ये देखा कि जब बच्चे, like on the left hand side you see child exploring cotton, है ना. तो वो कॉटन से शेप बना रहा है. कॉटन को हैंडल करना अपने आप में थोड़ा स्ट्रगल होता है छोटे बच्चों में. टूट जाता है, मुड़ जाता है, उसको शेप कैसे दें, एक स्ट्रगल रहता है, है ना, एक उसका एक चैलेंज रहता है. तो उसको बीट करना हमारे माइंड में फिर कुछ डेवलप होता है. सिमिलरली ये जो राइट हैंड साइड में बच्चे मिट्टी को एक्सप्लोर कर रहे हैं और मिट्टी से एक शेप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना. वो स्टिक से उस पर लाइंस देने की कोशिश कर रही है, पैटर्न्स बनाने की कोशिश कर रही है, और 2 लड़कियां साथ में काम कर रही हैं. तो इस तरीके की चीजें वी ट्राई टू प्रमोट. दिस इज देन प्ले आल्सो ब्रिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट. लेफ्ट हैंड साइड पे आप एक इमेज देखो जिसमें बच्चों को डिक्शनरी पे जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं वो नहीं दिख रहे थे, बट जैसे ही उन्होंने एक बल्ब के अंदर पानी डाला तो लेटर्स मैग्नीफाई हो गए. नाउ दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ साइंस. बट हमने साइंस का एप्लीकेशन नहीं देखते, हम साइंस को लाइट के चैप्टर से रिलेट करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे देखते हैं, है ना. इस तरीके से कॉन्सेप्ट से लिंक करते हैं, बट रियल लाइफ में कैसे साइंस अप्लाई करते हैं वो हमने यहाँ बच्चों के साथ देखा. एंड ऑन द राइट हैंड साइड मैंने बहुत सारे बच्चों को सुना है अपने लाइफ में कि चिल्ड्रन आर फियर ऑफ मैथमेटिक्स, चिल्ड्रन आर फियर ऑफ नंबर्स, है ना. आई डोंट लाइक मैथमेटिक्स, मेरे को तो नंबर देखते ही मेरे को, है ना, नींद आ जाती है. एंड दीज चिल्ड्रन आर प्लेइंग सुडोकू विदाउट यूजिंग नंबर. ये देखिए आप, इसमें 4x4 का ग्रिड है. In every row or a column, children have to use different object. And that too, ये गांव में बच्चे खेल रहे हैं
जो कि आसपास के मटेरियल्स को यूज कर रहे हैं, लकड़ी को, डंडी को, पत्ती को, पत्थर को। एंड इसमें बहुत दिमाग लगता है। सबको ये लगता है ना इट्स अ फन, नो इट्स नॉट ओनली फन, इट इज फन बट इट इज लॉट ऑफ लर्निंग ऑल्सो। तो ये कुछ चीजें हम लोग गाँव में कराते हैं। और फिर जैसे आपने देखा था वो कैसा हमारा शेर का पपेट शो इन द, है ना, प्रीवियस स्लाइड, फिर हम बच्चों के साथ थोड़ा क्रिएटिव आर्ट क्राफ्ट, है ना, ये सब भी चीजें करते हैं, ज्यादातर आर्ट बेस्ड, जिसमें बच्चे थोड़ा सा, कुछ बच्चों को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, कलरिंग करना अच्छा लगता है, तो उसके फेसेस बना रहे हो बच्चे को। और यहाँ पे एक और बच्चे ने फेस बनाया, अनदर चाइल्ड हैज मेड अ फेस यूजिंग लीव्स अराउंड। So a child in the previous slide used colors, crayons, and the next you see, so there is no foundation. तो ये चीज हम अपने क्लासरूम में फ्रीडम देते हैं कि तुम्हें कैसे बनाना है तुम डिसाइड करो। वी जस्ट गिव देम सम चैलेंज, यार तुमने एक पपेट शो देखा, आप कुछ बनाना है जिसमें शेर कुछ, है ना, इस्तेमाल होना चाहिए। अब वो कैसे बना रहा है, दैट इज अप टू द चाइल्ड। सो देर इज लॉट ऑफ दिस एम्पावरमेंट विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। एंड देन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैव मेड दिस, है ना, जिसमें उन्होंने आसपास के वॉल्स के पैटर्न्स देखे, खिड़कियों पे पैटर्न्स देखे, है ना, और डोर्स पे पैटर्न देखे, एंड दे हैव पुट अप दीज पैटर्न्स, है ना, इन द इंडिविजुअल पीसेस, लेग्स पे, फेस पे। सो इट इज अबाउट ऑब्जर्वेशन, इट इज अबाउट ज्वाइनिंग। अगर आप देखो तो सिर को और पेट को बार्ड से जोड़ा है, ज्वाइन करके जोड़ा है ना, और उसके पैर मूव भी करते हैं। So there is also this mechanisms also that we try to integrate while they were playing, while they were making, you know. So this is some more examples I wanted to show, and some more examples of make your own play. तो एक चीज जो हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे आप देखो कोई भी गेम अब महंगा सा महंगा खरीद के लाओ बच्चों के लिए, एक बारी बच्चा खेल लेता है, उसके बाद इज नथिंग। सो वी आर ट्राइंग कि बच्चा बार बार खेले और बार बार अलग तरीके का गेम बनाए, है ना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये गांव में बच्चों ने लिमिटेड मटेरियल से गेम्स बनाए, अपने खुद का इंटेलेक्ट यूज करके, यूजिंग लॉट ऑफ देयर मटेरियल्स अराउंड, है ना, कागज, गत्ता, टूटी हुई बॉटल्स। अब देखो वो छोटे बच्चे, वो लड़िया टाइप का होता है, वो ट्राई साइकिल वाला जो शुरू में चलाते हैं, तो वो वाला यूज करा। एंड देन द चिल्ड्रन हैव मेड ऑटोमेटा गेम्स। ऑटोमेटा गेम्स है बेसिकली, वो आपने देखा होगा, देयर यूज्ड टू बी एन एड जिसमें वन कॉक यूज्ड टू कम आउट व्हेन देयर इज, है ना, 12 इन द क्लॉक, है ना, टिंग 9 o'clock 10 o'clock, है ना, उस तरीके से। सो children have applied the principles of automata to make their own, you know, games. And a lot of these children come from very low socio-economic background. तो ऐसा नहीं है दे कम फ्रॉम वेरी वेरी वेल ऑफ फैमिलीज, तो कैसे वो लोग लिमिटेड मटेरियल्स में कर रहे हैं। इस तरीके से चिल्ड्रन हैव मेड स्विंग्स, है ना, बच्चों को झूलने के लिए, है ना, कुछ पेड़ पे लगा देते हैं, कुछ घर के बाहर लगा देते हैं, है ना। सो दे मेड देयर ओन टाइप्स ऑफ गेम्स, एंड दिस इज द इमेज आई वाज टॉकिंग अबाउट। दिस इज अ रीसेंट प्रोजेक्ट, चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू मेक अ जाइंट पपेट, है ना, यूजिंग बैम्बू, क्योंकि बैम्बू वहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल है। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू सी, आप देखोगे कि उसका स्ट्रक्चर है स्केलेटन क्रोकोडाइल का, और राइट हैंड साइड पे वो क्रोकोडाइल बन रहा है। तो इस तरीके के जाइंट पपेट से, अब आगे दिखाऊंगा मैं आपको, दे हैव पुट अप परेड्स आल्सो इन द कम्युनिटी। हॉर्स राइड बनाया बच्चों ने, है ना, छोटे बच्चों को झुलाने के लिए। आपने देखा होगा जब पेरेंट्स काम पे निकल जाते हैं तो बच्चे बहुत रोते हैं, बड़े भाई बहन भी संभालने में दिक्कत होता है। तो वी कैन हैव, एंड यू कैन यूज दीज इन योर आंगनवाड़ीज, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में इनका बहुत यूज है ना, तो बच्चे सीखते भी हैं। ये थोड़ा ग्रेड 1-2 के आसपास का गेम कह सकते हैं, जिसमें फुटबॉल है और वो उसको सामने वाले गोल पोस्ट में लेके जाना है, उसको इधर लेके जाना है। एंड चिल्ड्रन हैव मेड ओनली दिस काइंड ऑफ अ गेम यूजिंग न्यूज़पेपर, ये स्टिक्स हैं, and then the players they have cut in balls, holes, and this is the jigsaw puzzle, है ना, children are solving it। तो एक लॉजिक और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आ ही रहा है, और दूसरा कि आप अगर खुद भी ये पजल बना सकते हो, एक पेंटिंग बना दो बड़े से कार्डबोर्ड पे और फिर उसको काट दो, एंड देन यू पुट अप इन योर
है ना, प्ले जोन और मेकिंग जोन, समथिंग जोन. सो नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हमारे जो यूथ फैसिलिटेटर्स, क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव नाउ जॉइंड आवर टीम, है ना, एंड दे आर नाउ टेकिंग दिस पैशन फॉरवर्ड वे दे आर गोइंग टू द कम्युनिटीज. वो जाते हैं कम्युनिटीज में और वो फिर बच्चों को गेम्स मेकिंग, और ये तो कुलदीप और सुनील है हमारे ही दो यंग फैसिलिटेटर्स जो कि अब कम्युनिटीज में जाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं. तो अगर आपके आसपास कुछ बड़े बच्चे हैं 10th स्टैंडर्ड के हो गए हैं, उनके अंदर ये भावना कैसे जागृत कर सकते हैं, उनके अंदर ये फीलिंग कैसे आए कि है ना दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. ये चंदन है जो कि हमारे बुलबुले फेस्टिवल के लिए प्रॉप्स बना रहा है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आते हैं उस फेस्टिवल में. तो ये बच्चे अब इनिशिएटिव्स लेने लगे हैं, ये बच्चे अब आगे. एंड इट हैज लेड टू लॉट ऑफ दीज ग्रास रूट इनोवेशन. बहुत सारे इनोवेशंस होने लगे बिकॉज बच्चे प्ले, जैसे ये चारा काटने की मशीन को बच्चों ने साइकिल से जोड़ दिया, है ना, प्ले कर रहे थे, साइकिल को एक्सप्लोर कर रहे थे, साइकिल के बारे में पूछ रहे थे. एंड देन दिस इनोवेशन, बिकॉज गांव में लोग कैटल रख नहीं रहे थे, पीपल वर नॉट कीपिंग कैटल बिकॉज इट वाज टाइम कंज्यूमिंग टू कट फॉडर. सो उन्होंने कहा कि कैसे, बच्चों ने सोचा कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए. उसी तरीके से गर्ल्स यूज टू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गो टू स्कूल्स व्हाइल इट इज रेनिंग. तो ये सब बच्चों ने सोचा कि कैन वी अटैच अ अम्ब्रेला ऑन द टॉप ऑफ द बेसिन. So it is lot of these playful activities, open-ended thinking led to innovations. Then on the left-hand side, you see children have put up library books. ये बच्चों ने जो महीने में सीखा उसको बुक का फॉर्म दे दिया, है ना. On the right-hand side, these girls have made banana fiber का sanitary napkin. So this playful explorations, making से हम बहुत सारी problems को solve करते हैं. This I wanted to show कि कैसे हम लोग एक बेटर सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं. एंड प्ले ब्रिंग्स अस ऑल टुगेदर. प्ले इज वन थिंग वेयर देयर इज, दिस इज एज एग्नोस्टिक, है ना. 6 year old 60 year old डजेंट मैटर, वो फर्क नहीं पड़ता है उससे, है ना. So we all have made this, है ना, puppets using some piece of cloth lying around, है ना. तो मैं ये अभी ट्राई भी कर रहा था हैंकरचीफ से, और अभी आपने ट्राई किया. So I was telling you कि on the World Puppetry Day we have put की पपेट परेड, और हम लोग कम्युनिटीज में जाते हैं, रोड्स पे जाते हैं, पपेट्स निकालते हैं, है ना, उसको बच्चे बनाते हैं पपेट्स. और उसी तरीके से हम लोगों ने लखनऊ मेट्रो में भी ट्रैवल किया पपेट्स के साथ. और है ना, कम्युनिटीज लोग कनेक्ट होते हैं, फिर वो लोग, है ना, और बनाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं पपेट्स के बारे में, इसके बारे में, उसको. या एंड दिस इज अ वेरी क्यूट फोटोग्राफ, a child exploring cotton. I would like to show a small video also. Probably Alicia would play it. है ना? So there's a lot of this playful explorations by uh, students, and you can have a look. I have to stop sharing. Yeah, Alicia, I think you'll need to share it with sound. Yeah. Could you reshare, please? Alicia, when you should stop sharing and reshare, and then there's a checkbox there which says share with sound. Once you click that, then your computer audio will come through. Was the audio not coming on the video? No, no.
while we wait for the video to come up, if any of y'all would like to share any one insight that has struck a chord with you that you could possibly plan to use or apply in your own work or context, you can share it in the chat. It would be really nice to see Yeah, what. we'll share the link on the chat. There's some technical glitch. So that's it from my side. In case there are any questions. Yeah, so is the audio fine now? Can everyone hear? Yeah, I can hear you. Okay. Yeah, I think the audio is good. We'll open it up for questions if anyone has, but let me get us started. So Rahul, हमारी पहले भी बात हो रही थी. Play is fine, playful learning is fine. इसको alternative schools में तो कर सकते हैं. आपने किया है. We can see such powerful visuals and imagery that you've shown us. But any insights on how to kind of bring it to more mainstream classrooms and mainstream spaces through your work? When you go to government schools, what are mindsets you kind of encounter, and as you leave after week 3, or as you're working with them, what kind of shifts and why, if you can share? So it is difficult. First of all, let's accept it. It is difficult to integrate play in mainstream schools, classrooms. It is not easy. But I can see shifts happening through teachers. For example, I have one teacher in one of the government school where she has taken puppetry in her Hindi classes. तो वो जब कहानियां सुनाती हैं हिंदी में लैंग्वेज में एंड पोएम्स करती हैं तो वो एक पपेट लेके जाती हैं और उस पपेट के यूज करके एंड शी टोल्ड मी कि उससे बच्चों का रिकॉल बेटर हुआ है कि मतलब कि बच्चों को याद रहती है वो स्टोरीज वो बच्चों को पोएम्स याद रहती हैं बट देयर इज ओनली वन आउट ऑफ दीज 75 टीचर्स सो ऑब्वियसली द एक्सेप्टेबिलिटी स्लो है डिफिकल्ट है यू हैव टू मेक अ पपेट यू हैव टू टेक इट टू द क्लासरूम्स there will be some halla gulla, some disciplinary issues be. But having said that, जो experience करता है उसको ये समझ में आता है it's a very powerful tool, है ना? So that is also given. So it is doable, it is possible, but only thing is that कि one has to take that plunge, one has to take that seriously, and probably है ना जैसे for example I myself have used puzzles a lot to teach mathematics. अगर आप देखो नंबर सेंस जो आता है हमें है ना अगर हम पजल्स को यूज करें मैथमेटिक्स सिखाने में तो बहुत जल्दी बच्चे मैथमेटिक्स के नंबर्स अगर आप शेप्स बनाना शुरू कर दो तो बच्चों को वॉल्यूम सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं मेकिंग में अगर आप कारपेंट्री कराते हो तो बच्चों को मेजरमेंट्स आ जाते हैं बहुत जल्दी इंच स्क्वायर है ना ये सब सेंटीमीटर इंच फुट है ना ऑल दीज वी फाइंड एज टीचर्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच बट थ्रू मेकिंग थ्रू display थ्रू puppetry puppets में अगर हमें फेस बनाना है बॉडी बनानी है क्या रेशो रखना है तो है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो जब बच्चे फिर अपनी बॉडी को नापते हैं फिर उसको स्केल डाउन करते हैं तो स्केलिंग डाउन स्केलिंग अप ये कॉन्सेप्ट जो कि बहुत डिफिकल्ट है 8th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट देन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में जैसे कि 3 to 6 years की कैटेगरी है उसमें पपेट्स फॉर्म लॉट ऑफ दिस इमेजिनेटिव टूल्स है ना आइडिया क्रिएशन के लिए बबल्स तो ये सब चीजें पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है एज एजुकेटर मटेरियल जुटाना पड़ता है या मटेरियल देना पड़ता है फिर उसको करवाना पड़ता है बट इट इज पॉसिबल Aditya has a question. They are running a creche, and when children are admitted at creche, they cry a lot. So, do you have any ideas and links to get ideas to keep engaging the children? क्रैश में जो बच्चे रोते हैं मुझे लगता है एक बेसिक रीजन है कि होम सिकनेस होता है एक पेरेंट्स के साथ है ना अटैच होते हैं फिर पेरेंट्स चले जाते हैं आई थिंक वन ऑफ द वे जो मुझे लगता है इज टू गिव एंगेज देम विद लॉट ऑफ सॉफ्ट टॉयज पपेट्स है ना उनके साथ वो एंगेज हो सकते हैं मे बी यू कैन हैव अ स्टोरी टेलिंग सेशन इन द मॉर्निंग व्हेन दे कम फॉर द फॉर ड्यूरिंग द क्रैश ऑल्सो यू कैन हैव स्मॉल गेम्स है ना अगर वो बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं तो यू कैन हैव दीज टॉयज वे दे कैन प्ले लॉट ऑफ दिस प्रिटेंड प्ले कर सकते हैं बच्चे जैसे मेरा 8 साल का बेटा है बट वो जब 2-3 साल का था
तो बार बार वो अपने छोटे से गेम्स पपेट्स निकाल के उनके साथ कभी हाथ में डाल देता था, कभी उसमें कर लेता था। तो आई थिंक वो काफी हेल्पफुल रहता है, मुझे ऐसा लगता I think, Rahul, another question just coming from this is, do you actually have something that you can share with everyone which has like all of these rich ideas that you have mapped to even just basic domains, math games or imagination games, or games you can play without materials. ऐसा आपके है। पास कुछ है जो आपने बनाया है जो शेयर कर सकते हैं? मैं ऐसा बनाया तो नहीं है, बट वी हैव दिस कैटेगरी, वी बेसिकली मेक्स गेम्स बेस्ड ऑन अ पपेट शो की स्टोरीज है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने जो बॉक्स वाले आइडियाज दिखाए, तो एक स्टोरी थी नॉट अ बॉक्स, तो उससे लिंक्ड हमने सारे पपेट शोज बनाए, बट उसमें बहुत सारी चीजें लिंक्ड हुई, इमेजिनेशन यूज हुई, क्रिएटिविटी यूज हुई। We can actually, if somebody is interested, we can send a document where है ना मैथ्स रिलेटेड, फॉर एग्जांपल पपेट्स बनाते वक्त मैथमेटिक्स कौन से कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, फॉर एग्जांपल, है ना। सिमिलरली अगर हम कलर सुडोकू खेल रहे हैं, तो सुडोकू में नंबर सेंस, या बच्चा जब कलर्स को भी कर रहा है बट उसको एक पैटर्न समझना है। आप ग्रेड 1 to 5 में देखो, पैटर्न एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी पांचों क्लासेस में। तो इसका मतलब कि किसी ने जिसने बनाया वो पैटर्न्स को कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है लाइफ में। 5 साल हम पैटर्न्स पढ़ते हैं, बट हम नंबर्स के पीछे पड़े रहते हैं। बट पैटर्न्स अगर हमें समझ में आ जाए तो हम नंबर समझ लेंगे, क्योंकि नंबर भी एक पैटर्न ही है ना। Prakash ji, you can unmute and ask your question. या हेलो राहुल जी, हेलो एवरीवन। मेरा क्वेश्चन ये है कि जनरली बच्चों के साथ जब एक्टिविटी करते हैं तो लाइक क्लासरूम में अगर 10 बच्चे हैं तो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में 5-6 बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी 3-4 बच्चे नहीं करते हैं, तो उसको एड्रेस कैसे किया जाए कि सभी बच्चे इंगेज हो? सही बात। ये तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि वो बच्चा बोलेगा मुझे ये नहीं खेलना, वो बच्चा बोलेगा मुझे ये नहीं खेलना। तो मैं जो कोशिश करता हूँ कि एक दो गेम्स, जैसे अगर मेरे पिटारे में 2-3 गेम्स रहेंगे, तो कभी कभी मैंने अपने क्लासरूम में देखा है कि एक गेम से शायद सारे है ना सेटिस्फाई ना हो, तो एक और गेम लेके आप जैसे ही बच्चों को कोई चॉइस दोगे या ऑप्शन दोगे, वैसे ही आप देखोगे कि बच्चे जुड़ जाएंगे आपके साथ। उनको लगेगा यार अच्छा ये टीचर ना 2 ऑप्शन दे रहा है। जैसे आप बच्चे को बोलोगे कि शादी में जाना है या खेलने जाना है, तो चाइल्ड एज एन एम्पावरमेंट, कि उसको लगेगा कि मेरे को चॉइस मिली है, अच्छा मेरे को ये चॉइस मिली है कि मैं चूज करूंगा। तो कोशिश आप करिए जब भी एक्टिविटी कराइए बच्चों को, चाहे वो प्ले रिलेटेड हो या कुछ और रिलेटेड हो, आप 2 ऑप्शन लेके जाइए। तो यार वो पता लग जाएगा कि 2 ऑप्शंस हैं, जिसको इस वाली एक्टिविटी में आना है वो इसमें आ जाए, जिसको, और आप देखेंगे 99% बच्चे फिर एलोकेट हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो चॉइस उनके पास हो। Really powerful idea, huh? हाँ, चॉइस मेकिंग इज अ वेरी एम्पावरिंग टूल। We have Divya here who's asked a question. She's working with tribal children for preschool. Can you share more ideas for children making their own puppet for forest area? So they can, first of all, they can use a lot of these materials around the forest to make puppets. First of all, ये तो है ही। But हर क्वेश्चन इज कि क्या फॉरेस्ट एरिया के लिए बनाना है कि फॉरेस्ट एरिया में जो मटेरियल्स मिलते हैं उनसे बनाना है puppet? दिव्या, आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं. You can unmute yourself. Sometimes we try wanted to raise this sociological issue कि don't cut Yeah. forest, है ना, इस तरीके के भी हम कर सकते हैं वो, है ना। या फिर आपका क्वेश्चन ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल टू एड्रेस है, अगर वो नहीं आ रही, कि अगर जैसे फॉरेस्ट मटेरियल यूज करना है विच इज ट्विग्स, लीव्स, तो आई हैव शोन लॉट ऑफ दीज आइडियाज ऑलरेडी, जिसमें स्टूडेंट्स कैन मेक पपेट्स एंड दे हैव मेड देयर पपेट्स ऑलरेडी, है ना। सो आप लीफ यूज करके उसकी बॉडी बना सकते हो, है ना। कोई भी फ्रूट ले लो सर्कुलर या जो भी, डिफरेंट शेप भी हो सकती है, उससे आप उसका सिर बना सकते हो, है ना। तो इस तरीके की दिव्या। हाय दिव्या। Yeah, thank you, Rahul. You answered my question almost. Yeah, thank you. Yeah. So I was saying कि yeah, you can use lot of this material, and one thing which I wanted to tell you कि don't try to push for perfection in the first go. हम लोग एज ए एजुकेटर ये प्रॉब्लम है हमारे अंदर।
आई ऑल्सो कि यार वो पहली बारी में परफेक्ट सक्सेस रेट हाई, लॉट ऑफ ऑडियंस कमिंग टू वॉच द शो, इट्स क्रिएटिंग लॉट ऑफ बस अराउंड द सिटी. If it happens, very good. But if it doesn't happen, it's also very good because it makes child reflect कि यार क्या गड़बड़ करी मैंने कि लोग नहीं आए, क्या गड़बड़ करी कि मेरा puppet चला नहीं. That type of questions move children much faster, है ना, and you will see these children doing much better in their lives, है ना, then those children जो कि पहली बारी में जिनको सक्सेस मिलती है ना. तो वो थोड़ा सा educators have to be cautious कि ना, let children make mistakes, let's be a little more okay, है ना, तो ठीक है. Ram has a question. Yeah, Ram, can you unmute? So thank you, Rahul ji. Actually, I come from same kind of school. I worked in Digantar as a teacher in upper primary school. They also followed like same pedagogy, constructivism and learning by fun, learning by doing, you know. So all the engaged activity, children are engrossed in like learning science through activities, learning mathematics through activities. So I think there was good question that we can practice such pedagogical practices in alternative schools. But when it comes to government schools, it is difficult. You also realize. So like teacher also need to have some preparation to implement like such lesson plans which are based on fun and engaged activities. So how long they have to make preparation, advanced preparation or planning? This is one question. Okay, and how do you track like actually the academic progress, learning progress of children? We can see that they are engaged in different kind of fun and engaged activities, but how do you like assess actual gain in learning? हाँ, ये सवाल ना मेरे दिमाग में पिछले 5 साल से चल रहा है जब से ये प्रोग्राम. तो पहला क्वेश्चन और दूसरा दोनों क्वेश्चंस काफी मुश्किल हैं. तो like our team has to plan almost 30 days in advance to do the next puppet show. तो फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि स्टोरी सिलेक्शन से लेकर फिर पपेट्स बनाने से लेकर फिर उसमें टॉय गेम्स पजल्स क्या इंटीग्रेट होंगे, फिर मेकिंग एक्टिविटीज क्या उसमें होंगी, और फिर उसकी एग्जीबिशन भी लगानी है. इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी, है ना, इट टेक्स लॉट ऑफ, है ना, प्लानिंग, थिंकिंग. इट्स अ -30. मतलब इफ आई हैव टू डू इट नाउ, आई हैव टू स्टार्ट प्लानिंग 30 days in advance. So one is that. And 30 into 8 hours per day into, we have 4 team members who are working directly into this. So there's a lot of this planning and a lot of this preparation for the classroom. Secondly, on the assessment, it is a question which I have not been able to answer अभी तक, क्योंकि मेरे को अभी तक ये नहीं समझ में आया है कि जो बच्चा बनाता है, जो बच्चा प्ले करता है, जो बच्चा, है ना, उसके मैं ग्लिम्सेस तो देख पाता हूँ क्लासरूम में, मैं उसको थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर पाता हूँ, बट क्या वो अंदर तक ये चीजें जी रहा है, क्या वो बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स को टेस्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन को, तो मैंने 5 अलग तरीके के सवाल दे दिए, 2 डिजिट दे दिए, सिंगल डिजिट दे दिए, 3 डिजिट दे दिए, कैरी ओवर सीख गया, तो मैं टेस्ट कर सकता हूँ कि हाँ ठीक है, मल्टीप्लिकेशन द चाइल्ड इज लर्न. बट हाउ डू आई नो वेदर चाइल्ड, अब जैसे मेरे पैरामीटर्स हैं ऑब्जर्वेशन, मेरे पैरामीटर्स हैं रिगर, मेरा पैरामीटर है अप्रिशिएटिंग आर्ट. अब ये मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ कि ये मैं कैसे नापूंगा कि ये बच्चे अच्छा हमेशा ऑब्जर्व करते हैं. तो आई कैन, सो व्हाट आई हैव बीन एबल टू नाउ एबल टू सी कि कुछ मुझे टेस्टिमोनियल्स, एनेक्डोट्स या कुछ स्टोरीज दिखती हैं जिनसे मैं ये बोलता हूँ कि हाँ 20% ऑफ माई क्लास इज लिटिल बिट ऑब्जर्वर. वो देखने लगे, वो बारीकी से नोटिस करने लगे. आई डोंट नो अबाउट 80%, क्योंकि मैं ही खुद पावरफुल नहीं हूँ इतना एज अ फैसिलिटेटर कि आई कैन सी 100% ऑफ द चिल्ड्रन राइट नाउ. ना, माय विजन इज आल्सो लिमिटेड. तो मुझे लगता है कि जो टूल्स हैं ये थोड़ा सेल्फ असेसमेंट टूल्स हैं. मतलब मैं इनको बच्चों को दूंगा धीरे धीरे ऐसे डेवलप करके कि चाइल्ड विल टेक इट, ओ आई हैव बीन एबल टू नाउ ऑब्जर्व वेरी क्लोजली, I have been able to now put in lot of rigor.
So now this will become like a self-assessment sheets where children will assess themselves rather than I assessing. ऐसा मुझे लगता Thank you, Rahul ji. है सर. I love Elizabeth's comment in the chat. You have to read it, Rahul. अच्छा, let me. 2-minute noodles, of course, but आज पता चला 2-minute puppets possible हैं. Great. No रटना, उगलना, only pure मजा. Problem solve करो, creative बनो, playful exploration, joyful innovation. Classroom में धमाल, वाह भाई वाह राहुल जी, सब कुछ कमाल, सचमुच कमाल. ये तो बहुत अच्छी कविता लिख दी यार. क्या बात है. Thank you, बहुत Elizabeth. थैंक यू सो मच. ये एलिजाबेथ का तो बहुत. आई थिंक हम लोग टाइटल सोच रहे थे. प्लेफुल एक्सप्लोरेशन भी अच्छा टाइटल है, जॉयफुल इनोवेशन भी अच्छा टाइटल है. ग्रेट, थैंक यू. I think अमन we ने can हाथ खड़ा किया. one last we can take. मेरा भी राम जो थे उन्हीं से जुड़ा हुआ था कि असेसमेंट जब एक्टिविटी करने से पहले प्री एंड पोस्ट असेसमेंट भी हम लोग ले सकते हैं जो जानने के लिए. दूसरा तरीका है ऑब्जर्वेशन और पहला ये जो करते हैं. प्री और पोस्ट असेसमेंट नहीं लेते हैं हम. उसके पीछे का कारण ये है कि आई हैव लिमिटेड टाइम टू इंटरेक्ट विद द चाइल्ड. इफ आई वेस्ट टू मच टाइम इनटू असेसमेंट, देन हम बच्चों की जो लर्निंग में एनहांस करना चाहते हैं उसका समय कम हो जाएगा. इसलिए मैं काफी कम समय देना चाहता हूँ असेसमेंट का. मतलब कि जब मैं बच्चे से मिलूं तो मैं उसको चैलेंज दूं, वो चैलेंज में कुछ करे, फिर वो मेरे पास लेके आए, फिर मैं उसको और चैलेंज दूं. ये टाइम मैं सबसे ज्यादा यूज करना चाहता हूँ, है ना, रादर देन ये असेस करने का कि अच्छा वो 60% पे था, अब वो 80% पे चला गया. क्योंकि मेरा टाइम गवर्नमेंट स्कूल में लिमिटेड है. मैं जाता हूँ एक हफ्ते में 2 घंटे के लिए एक स्कूल में. वो 2 घंटे को मैं बिल्कुल ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ. दैट इज द रीजन मैं उसको ज्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ असेसमेंट टूल्स को. लेकिन फिर ये भी तो हमें देखना होगा कि क्वालिटी इंश्योर हो पा रही है कि नहीं. क्या जो हम एक्टिविटी लेके जा रहे हैं, एक तो आप बता रहे तो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, लेकिन उसके जो एकेडमिक्स है उसे हम फिर कैसे देख पा रहे हैं कि कैसे वो ग्रो कर रहा है. तो मैं वही तो कह रहा था अभी पिछले वाले उत्तर में भी कि वो जैसे आपने अपने बच्चे को प्रोटीन एक्स पिलाया दूध में डाल के, तो आप रोजाना थोड़ा ना नापोगे कितनी लंबाई बढ़ गई है. मतलब एक आकलन करोगे थोड़े दिन बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद. बट वो भी हम भी करते हैं एक बेसिक सा. बट रोजाना तो आप दूध में प्रोटीन एक्स मिला के ही दोगे ना. सो व्हाट वी आर सेइंग कि वी हैव टू गिव द इनपुट्स ऑन अ डेली बेसिस. वी विल डू सम सेल्फ असेसमेंट और मे बी सम एनेक्डोट्स, कुछ कहानियां मिलेंगी आपको, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका प्रोग्राम सही जा रहा है कि नहीं जा रहा. दैट इज व्हाट वी हैव बीन एबल टू. Makes sense, Rahul. And like longer term, let us commit to this and then see. हाँ, Uh, because it takes time. it does take time. We're over time now. Thank you so much, everyone, for staying with us and joining today and engaging so beautifully. If you all have any insights or takeaways that you'd like to share in the chat, please do. We are here for 5-10 minutes more. We'd love to hear what you want to try out at in your own context. Thank you so much, Rahul. बिल्कुल Thank ये you. बहुत ही सुंदर show and tell kind of session था. So many rich ideas and just the diversity of contexts and materials that you showed, simply like very eye-opening. And truly, like Elizabeth said, ये हमने 2 मिनट में बिना प्रिपरेशन के जो puppets बनाए, really eye-opening when we think about, Thank innovation. you to Varun. Yeah, thanks to Varun for bringing that up. It's absolutely lovely. Everyone here, whoever wants to be updated on more master classes, please follow the Bachpan Manao channels on LinkedIn and the newsletter. I think Alisha has also put in the chat the Swatantra Talim contact details. Please do reach out to them. As you can see, Rahul, Alisha is so friendly, so forthcoming, and it's been a pleasure to kind of. And you all are invited to come to Swatantra Talim design studio that we have in Lucknow. We have a contextual and cultural maker space in village called Malsarai, which is in Sitapur district. So you all are welcome. We also work in 13 primary government schools of Lucknow district.
So if you happen to be in Lucknow or in and around Lucknow, please ping us and we will take you there. And if you want some kind of support, कुछ ideas चाहिए, just email us. And everything is open source. कोई nothing is copyrighted. Thank you everyone. Thank We'll you see so you much. in the next masterclass. प्रकाश जी ने हाथ खड़ा किया है, पूछ लेते हैं. Prakash ji, yes. Yeah, I'm from Udaipur and I'm running here an alternative school for tribal children, right? So मुझे ये जानना था कि कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आप सजेस्ट कर पाए या मुझे कहीं से मिल जाए, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास जो अगर आप शेयर करना चाहें या कहीं आपके किस उम्र के बच्चे हैं? 5 साल से लगा के मैं 16 साल के बच्चों को एड्रेस कर रहा हूँ. हाँ, तो हम आपको ये खोजियान प्रोग्राम जो हम चलाते हैं प्राइमरी स्कूल्स में, उसका एक पूरा डॉक्यूमेंट भेज देंगे आपको, है ना, जिसमें पपेट्स के आइडियाज हैं, टॉय गेम्स पजल्स के आइडियाज हैं, मेकिंग के आइडियाज हैं, फिर एग्जीबिशन कैसे लगाते हैं. आप एक ईमेल कर दीजिएगा हमें, तो हमारी टीम में से कोई भी हमें आपको ईमेल पे रिप्लाई करता है. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Alisha, if you can put the email ID once again, it'll be great. It'll be right. ईमेल आईडी डाल दो अलीशा. Thank you so much, everyone. There's still 73 people here. Incredible. Thank you so much for spending your afternoon with us, engaging so It was so lovely to see so many people actually, है ना, and I was slightly scared कि कैसे इतने सारे, है ना, but अच्छा हो गया. I think I felt really nice, and thank you to Bachpan Banao team and to Hita specifically for looping me in and to actually initiate this conversation of holding a master class. अभी हम लोग, मुझे याद है कि 2 महीने पहले फोन पे ऐसी बात कर रहे थे and she just told me this idea कि why don't you take a master class, and today we had. Yeah, lovely. Thank you Varun, thank you Harish, thank you so much. Thank you everyone. Can I leave now? Rahul, if you can stay for 2 minutes, Yeah. we can kind of just connect. ठीक है.